Hello students, welcome to our YouTube channel that is Tinsa Classes, and in today's lecture series of IT we will cover the topic of Internet and Cyber Laws. This is our lecture number 9 of Patwari IT series, and this IT series is basically focused on the upcoming exam of Patwari. So before moving further, I want all of you to please subscribe our YouTube channel that is Tinsa Classes, and in this lecture ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਕ website, what is website, what is web server, what is web page, what is internet, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ to introduce what is the chapter of internet ਉਹੀ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। नेक्स्ट ਆਪਾਂ कुछ कनेक्शंस करांगे, what are dial-up connection, what are wireless connections, so what are broadband connections। so ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। कनेक्शंस करने तो बाद फिर आप कुछ प्रोटोकॉल्स करांगे, what are TCP protocol, what are FTP protocols ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇਨ OSI ਮਾਡਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल्स ਪੜਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼। ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ थोड़ी जी definitions like domain name, domain abbreviations, DNS. So let's start with the first term, that is the domain name. So domain name की होता है, आपका सब दा एक name है, right? अपने parents ने आपन एक आधार name देता हुआ है, ठीक है? So same is in the case of the computers, in the case of the internet, like जो domain name है, it is a way to identify and locate the computers connected to the internet। ठीक है, जो domain name है ਆਪਾਂ जिन्हें भी computers internet ਦੇ ਨਾਲ connected है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ identify ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ domain name यूज़ ਕਰਦੇ हैं। ਜਿਵੇਂ पेरेंट्स ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ identify ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ पेरेंट्स घरां दे विच लाइक 8-8 9-9 चिल्ड्रन हुंदे सी ते पेरेंट्स अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करने लिए अदर नेम्स हुंदे सी। सो जस्ट हैज टू गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਯੂਨੀਕ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ कंप्यूटर। ये दो पार्ट होंगे हैं, ठीक है। ये दो वध पार्ट भी हो सकते हैं, वैसे दो पार्ट तो होंगे ही होंगे हैं जोड़े कि एक डॉट के नाल सैपरेटिड होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें दिता हुआ है ना google.com, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सैकेंड पार्ट हो गया। एंड सैकेंड तो एग्जाम्पल है wirk.com, wirk.com, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सैकेंड पार्ट हो गया। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके दी डोमेन नेम दी। Now next term है domain abbreviations। Now abbreviations ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ abbreviations यूज़ करते हैं in internet, ठीक है। ये ਜਿਹੜੀ abbreviations हैं ये according to organization and according to the country ਹੁੰਦੀ है। एब्रीविएशन जी होंगी डॉट तो बाद च लगदी पता लग जाता है कि हाँ ये जी साइट है, दिस वैबसाइट बिलोंग्स टू दिस कंट्री, और दिस वैबसाइट इज़ ए एजुकेशनल वैबसाइट, और दिस वैबसाइट इज़ ए कमर्शियल वैबसाइट। सो आप उस करके एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। जी एब्रीविएशन होंगी है ये कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली या उस हिसाब के ऑर्गेनाइज होंदियां ने। आप जी 3 लैटर की एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन वास्ते यूज़ करते हैं। ये 2 लेटर की एब्रीविएशन है वो आप कंट्री वास्ते यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल .info, जिथे कोई आ जाए वैबसाइट का नाम लाओ abc.info, www. let me write it clearly here,
www.abc.info। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी ABC है कोई इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। आप इस साइट पे जावांगे उस ABCD ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अपन दसनी कि हाँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो ये के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सेम .com जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वास्ते, .government www. कुछ भी कह देने आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया .gov, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप एग्जांपल ले ली। .edu इट्स फॉर एजुकेशनल, लाइक www.byju's.edu, okay। so it is also educational website। .mil it is for use for military। .net जो कोई नेटवर्क रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड .net। .org कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसलिए आप .org आप यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट जे आप किसी कंट्री वास्ते यूज़ करना है तो ऑब्जर्व करना है सारे ही 3 लेटर्स वर्ड हैं एक्सेप्ट इन्फो, कोई गल नहीं। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइजेशन वास्ते यूज़ करते हैं आप दे आर मोस्टली 3 लेटर वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज दी जी कंट्री वास्ते यूज़ करते हैं। इंडिया वास्ते आप .in यूज़ करांगे, ऑस्ट्रेलिया लिए यूज़ किया होया इत्थे .au, फ्रांस लिए FR, न्यूजीलैंड लिए NZ, UK यूनाइटेड किंगडम लिए .UK, कैनेडा लिए CA होएगा। तो हर एक कंट्री लिए अपना जरा होएगा कंट्री दा एब्रीविएशन होएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये जो वेबसाइट है इट बिलोंग्स टू दिस कंट्री। नेक्स्ट कम दी DNS, दैट इज द डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस का एक उस तरीके की सर्विस है, अपन उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिन्हें भी अपने वेबसाइट के नेम होंगे हैं जिन्होंने आप की कहते हैं कंप्यूटर होस्ट नेम इन द नेम ऑफ दी IT लैंग्वेज वी से दैट जिन्हें भी अपने कंप्यूटर के नेम है जिवें google.com apple.com एग्जांपल देता होया है ते microsoft.com जो डोमेन नेम सर्विस है, ओके। इत्थे मैं उसनू पिक्चर में एक डॉग रिप्रेजेंट किया होया उसनू उसके पर्टिकुलर कोरस्पोंडिंग IP एड्रेसिस कन्वर्ट कर दिंदा, जिवें google.com का ये IP एड्रेस है, apple.com का ये है, microsoft.com का ये है, ताकि ताकि जी कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नू समझ आ सके कि हाँ आज जो IP एड्रेस है इसका है तो मैंने इस डेस्टिनेशन से इसमें लेके जाना है या इस तरीके ਨਾਲ कम्युनिकेशन करनी है। मैं पता है ना कम्युनिकेशन भी इस IP एड्रेसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। वी हैव डन इन दी OSI मॉडल, सो सिमिलरली DNS इस तरीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करता है। नेक्स्ट इज ब्लॉग्स। तो है ब्लॉग्स की होंगे हैं, ब्लॉग्स एक तरीके की वैबसाइट होंगी है, ठीक है। जो आप कह सकते कोई वैब पेज जिसे कोई भी बंदा अपना कोई पर्सनल ओपीनियन किसी भी चीज़ बारे लिख सकता है, राइट। जिवें तुसी कोई ट्रिप पे गए, सपोज तुसी कोई मिडल ईस्ट गए, राइट, कोई कंट्री दे विच गए, उसे पर लिखिया कि मैं उत्थे आ वाले मॉन्यूमेंट्स देखे, मैं उसते आ वाले मैं सफारी टूर ते गया, मैं उस कंट्री की पूरी डिस्क्रिप्शन देती उत्थे एह जे लोग हैं आ चीज़ खाते हैं तुसी पूरा लिखता। इसका मतलब तुसी अपना ओपीनियन देता उस ब्लॉग बारे, मतलब ओपीनियन देता उस कंट्री बारे, इसका मतलब तुसी ब्लॉग लिखता, ठीक है। उस तुसी उहदे विच अपने फोटो भी पा सकते हो, उसका कुछ लिंक भी पा सकते हो कि हाँ तुसी इस लिंक पे जाओ तुहानूं होर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। और कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके हर एक इमेजेस भी पा सकते हो। सो जो भी चीज़ होएगी पूरा एक डिस्क्रिप्शन होएगा टूर बारे या किसी चीज़ बारे, सो इसनूं आपां की कहने हैं ये ब्लॉग कहने हैं। जो लोग आह चीज़ां इस तरीके दी चीज़ां लिखते हैं उन्होंने आपां अजकल व्हाट वी से देम वी कॉल देम एज ब्लॉगर्स, राइट। एंड the entries of blog is also known as post। अब कहते हैं उसने आ वाली पोस्ट पाई हुई आ वाली पोस्ट पाई, so the entries of blog are also known as the post। next one is the news groups। what are the news groups है? तो news group वो है कि तो पहले आप पता लग चुका ग्रुप्स तो, ठीक है। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बैठे हैं कंपनी
इत्थे ह्यूमैनिटीज़ वाला कोई बंदा बैठा है, इत्थे कोई राइट कोई सारे लोग बैठे हैं, ओके, लाइक डिस्कस कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है। ते इत्थे आएगा इट इज़ नॉट बार्ड, इट इज़ बोर्ड है। तो कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज दे कोई भी पैनल बैठा है, दे आर डिस्कसिंग regarding the coronavirus, the spreading of the coronavirus, the rise of the coronavirus cases in today's in today's you can say that in today's contemporary world, or you can, anything you can relate to। तो मतलब कुछ टॉपिक डिस्कशन चल रही है, कुछ लोग जेड़े हैं डिस्कशन कर रहे हैं, बट दे आर इंटरेक्टिंग थ्रू समथिंग, बट इंटरेक्टिंग किस कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड थ्रू ऑनलाइन थ्रू इलैक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ओके। जिवें आपां देखदे नहीं आपां हैगे कि न्यूज़ दे विच देखदे हैं काफ़ी सारे MPs या MLAs इंटरेक्ट कर रहे होंदे हैं, राइट, ते न्यूज़ दे उपर, राइट, आपां देखदे हैं। सो इट इज़ ए न्यूज़ ग्रुप, तो उन्होंने आपां की कहने न्यूज़ ग्रुप कहने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, आई होप सबनों पता लग गया होना। नेक्स्ट इज़ द सर्च इंजन। तो हियर आई हैव गिवन एन एनिमेशन, ठीक है, एक स्पुतनिक है, राइट, एक सर्च इंजन है, तो वो सर्च कर रहे हैं हेल्प। तो वो कहता है कि डिड यू मीन पुतिन एज द प्रेसिडेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड कूल। So it was like given an example or animation picture of the Sputnik. Sputnik is a search engine. Here I am referring to सर्च इंजन की होंदा। सर्च इंजन एक तरीके की वैबसाइट है जिथे आप जो कोई भी टॉपिक सर्च करिए तो अपन उस टॉपिक की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जूगी। फॉर एग्जांपल गूगल भी अपना सर्च इंजन है, अपना सफारी भी एक सर्च इंजन है, अपना याहू भी एक सर्च इंजन है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिफरेंट टॉपिक्स से कुछ भी पाइए जो उससे आप लिखांगे, हाँ यार इंटरनेट लिखांगे तो अपन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जूगी, हाँ कि इंटरनेट आ चीज़ है, राइट। तो कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक से अपन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसमें आप वेबसाइट दिंदा प्रोवाइड करता है, उसमें आप कहते हैं सर्च इंजन। तो इट इज़ बेसिकली अ वेबसाइट एज यू कैन सी है कि www.sputnik.ru है लिखा। RU मतलब रशिया है, क्योंकि आप एब्रीवेशन की थी है ना डोमेन नेम दी। सो RU है रेफर्स टू रशिया एंड स्पुतनिक इज अ सर्च इंजन है कि है प्रॉपर्ली इट इज अ वेबसाइट, राइट। नेक्स्ट वी गो टू द इंटरनेट कनेक्शन। सो बेसिकली आप देखेंगे किहड़े इंटरनेट कनेक्शंस आए हैं। पहला अपने को वायर्ड कनेक्शंस होंगे सी है ना, आप वायर नाल इंटरनेट कनेक्शंस किए, फिर अपने को वायरलेस कनेक्शंस आ गए जिवें आजकल वाईफाई एंड ऑल दैट। सो आप देखोगे पहला किस तरीके के इंटरनेट कनेक्शन सी अपने को, फिर अपने को किस तरीके के कनेक्शंस आए, राइट। हुण आपां इह तां देख लिया अपने को किस तरीके के इंटरनेट दी टर्म्स हैं, राइट। हाउ वी हैव वेब सर्वर एंड सर्वर सर्च इंजन एंड ऑल। और उस तरीके की सर्विसेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करना, उस तरीके की सर्विसेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਰ देयर, we will see in these slides. So let's proceed further and start with the first connection, that is the dial up connection. So dial up connection ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ dial up connection यूज़ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ आया शुरू आया सी। डायल अप कनैक्शन दे विच की हुंदा है कि इहदे विच दो कम्युनिकेशन डिवाइस हुंदे हैं। मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक। वी हैव टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, लाइक हियर इट इज़ वन कम्युनिकेशन डिवाइस एंड हियर इट इज़ टू कम्युनिकेशन डिवाइस, जिहड़ा की करदा है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे नाल कनैक्ट हुंदा है, ठीक है। आपां की कह दिंदे आ ISP, ठीक है। सो टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूजेस टेलीफोन नेटवर्क। These are what? This is the telephone network. So here आप टेलीफोन नेटवर्क दे राही की करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे नाल एक कम्युनिकेशन एक ही करते हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन की है बना लेने हैं। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। पहला की करते हैं जे आप टेलीफोन नैटवर्क नाल कनैक्ट करना है, अपने को एक मॉडम होना चाहिए। मॉडम के नाल आप एक फ़ोन नंबर डायल करते हैं,
फ़ोन नंबर फिर डायल करांगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है। उस फ़ोन नंबर ਨੂੰ डायल करके अपना की होंदा है कनैक्शन बन जाता है, राइट। उस कनैक्शन जो बन जाता है उसके मतलब डायल करने तो बाद जो अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो ISP है तो अपनी कॉल रिसीव कर लेंदा है तो ਉਹਦੇ 10 सेकंड तक अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना ਜਿਹੜਾ है कनैक्शन बन जूगा। जो कनैक्शन बन गया सपोज दोबारा रिपीट कर देनी है जिवें तुसीं हो, okay, this is you or me say that तुसी एक ISP ਨੂੰ फोन किया, टेलीफोन लाइन है, राइट। तुसी एक फोन किया कि यार मेरे को ना नैट का कनैक्शन बना कर दे, मैं नैट चाहिए, मैं चाहिए नैट चाहिए कि मैं गल करनी है जो मैंने अपना होमवर्क करना है, कुछ भी करना है मतलब मैं नैट चाहिए। तुसी फोन किया यार मैनू इंटरनेट कनैक्शन इस्टैबलिश कर देता, इसने ये किया इंटरनेट प्रोवाइड करता विदिन 10 सेकंड। जो तुसी इन्हें थोड़ा फोन चुक्या और विदिन 10 सेकंड्स दे विच तुहानू की करता एक इंटरनेट कनैक्शन थोड़ा की कनैक्शन बन गया। जो थोड़ा कनैक्शन बनूगा ना उस तो बाद थोड़ी बीपिंग बजिंग साउंड्स आते रहेंगे, ठीक है। थोड़े टाइम तक आके बीप या बजिंग साउंड्स थोड़े आते रहेंगे। पुराने जमाने में होंदा सी, आजकल अपने ब्रॉडबैंड या वायरलेस कनैक्शन आ गए हैं, इट इज़ नॉट कॉमन इन टूडेज वर्ल्ड। उस तो बाद की होंदा है जिन्ना टाइम तुसी चाह तुसी 2 घंटे चलाना चाहो नैट या तुसी 3 घंटे चलाना चाहो नैट, ठीक है, तुसी उदों तक चला सकते हो। उस तो बाद तुसी करदे हो तुसी खुद ही डिस्कनैक्ट कर दिंदे हो, राइट। तुसी करदे हो कि अपने आप ही की करदे हो टेलीफोन बंद कर दिंदे हो। जे आपां कहदे जिन्ना टाइम तुसी गल कीती ठीक है तुसी आप ही फोन नूं कटता। सेम इज इन द केस ऑफ द डायल अप कनैक्शन, जिन्ना चिर तुसी यूज़ किया इंटरनेट उन्ना टाइम ही तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ISP ਨਾਲ अपना ਜਿਹੜਾ है कनैक्शन बनाए रखिया तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ है कनैक्शन कटता। एंड इस दे विच ਜਿਹੜੀ मेन डिसएडवांटेज आंदी है ਉਹ ਇਹ आंदी है जे सपोज ਤੁਹਾਡਾ कोई विच फोन आ जाए, क्योंकि उस पुराने जमाने 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ जब तुसी कोई फोन करना हुंदा सी कुछ भी इदां दा केस हो जांदा सी जेड़ा तुहाडा इह कनैक्शन हुंदा सी ना ISP दे नाल इह पूरा कनैक्शन की होंदा सी टुट जांदा सी तो तुहानूं दोबारा तो डायल अप कनैक्शन दोबारा बनाना पैंदा सी। दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ द डायल अप कनैक्शन। पर जेड़ा इह कनैक्शन हुंदा सी इह कनैक्शन की सीगा इह बहुत ज़्यादा सस्ता हुंदा सी, ठीक है। ते सस्ता होने करके इस थोड़ा पॉपुलर भी हो गया सी उस टाइम ते, बट it is slowest सीगा, it was the slowest internet connection, okay। तो थोड़ा जिहा बेसिक समझाया हाउ ये कनेक्शन बनता हुंदा सी डायल अप कनेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। इत्थे मैं दिखाया है किवें डायल अप हो रहा है, जस्ट टू गिव एन एनिमेटेड इमेजेस। ਤੇ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। डायल अप कनैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली 3 टाइप्स ने। एक है DSL, ओके। DSL मतलब डिजिटल सबसक्राइबर लाइन। ये थोड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ फुल फॉर्म ने ਤੁਸੀਂ याद करनियां ने। DSL मतलब की है डिजिटल सबसक्राइबर लाइन, डिजिटल सबसक्राइबर लाइन, ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बट इस तुम सोचोगे कि हाँ आपां पहला भी टैलीफोन लाइन के नाल डायल अप कनैक्शन का बनया, फिर आपां इस की फायदा होया, इस फायदा होया जी टैलीफोन लाइन जी आप इत्थे यूज़ करांगे ना वो जी वेस्टेड होएगी, वेस्टेड टैलीफोन लाइन यूज़ करांगे। मतलब सपोज थोड़े घर दे विच कोई पुराना टैलीफोन पिया होया सी, राइट, तुसीं उहनूं हुण यूज़ नहीं करते हैगे,
उस पुराने टैलीफोन लाइन तुसी यूज़ करके आह वाला जो ब्रॉडबैंड कनैक्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अपना इंटरनेट चला सकते हो। मतलब हुण जे तुहाडे दूजे नवे फोन ते जे कोई फोन आया तुसी उस फोन दे नाल गल कर सकते हो। बट पुराने उस दे विच जेह्ड़ा डायल अप कनैक्शन सीगा उस दे विच आ चीज़ पॉसिबल नहीं हुंदी सी, राइट। ते इस दे विच की हुंदा, इस दे विच एक चीज़ होर हुंदी है, जे तुसी दूर बैठे हो अपने कनैक्शन तो थोड़ा जी स्पीड होएगी स्लो होएगी, जे तुसी अपने कनैक्शन के कोल बैठे हो तो थोड़ी स्पीड फास्ट होएगी। ये मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस से डिपेंड करता सी। जे तुसी अपने मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो दूर बैठे हो थोड़ी कनैक्शन की स्पीड स्लो होएगी, जे नेड़े बैठे हो तो होएगी नेड़े होएगी, मतलब फास्ट होएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज केबल मॉडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੈਟ ਆਰ ਦੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ, राइट। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रांसमिशन स्पीड होएगी केबल मॉडम दी, इट इज़ इन दी स्पीड ऑफ दी 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड्स। MBPS का मतलब है मेगा बाइट्स पर सेकेंड, राइट। इन्नी तो होएगी तो बाद भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायल अप कनैक्शन तो स्पीड ਵੱਧ मिल रही है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ, उन्नी ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा उत्थे ट्रैफिक होएगी उस एरिया दे विच, तो मतलब जिन्नी ज़्यादा ट्रैफिक होएगी उन्नी ज़्यादा उत्थे स्पीड नेट दी स्लो होएगी, राइट। एक तो एक केस ए बन गया कि एक जगह इतने स्पीड स्लो हो सकती है। केस 2 की बन गया, केस 2 कितना की होएगा कि सपोज आ एरिया इतने बहुत सारे जिवें केबल मॉडम लगे हुए हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਆਵਰਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ उदों भी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। सो ये भी एक 2 डिसएडवांटेज है अपने केबल मॉडम कनैक्शन के। उस तो बाद थोड़ी होर डेवलपमेंट हुई, थोड़ी होर डेवलपमेंट होने तो बाद एक होर चीज़ आई दैट इज़ ब्रॉडबैंड ओवर दी पावर लाइन। ये आप थोड़ा इलैक्ट्रिसिटी जी लाइन्स हैं, पावर लाइन्स हैं, उहदे नाल आपां जी हैगी जो इंटरनेट कनैक्शन है उन्होंने थोड़ा जिहा एसोशिएट करन दे नाल पावर की स्पीड इनक्रीज की एंड जिहड़ियां अपनी प्रॉब्लम आ रही सी स्लो कनैक्शन दियां वो रिजॉल्व करने की कोशिश की। सो व्हाट इज BPL? BPL इज ब्रॉड ओवर द पावर लाइन एंड इट इज डिलीवरी ऑफ द ब्रॉडबैंड कनैक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग जिहड़ियां अपनियां लगियां हुई ने अपन फालतू जिहड़ियां पावर लाइन्स हैं होर लाने की लोड़ नहीं हैगी, बिकॉज जे वो लावांगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। सो ब्रॉडबैंड ओवर द एग्जिस्टिंग लो एंड मीडियम voltage electric power distribution network. So here were the 3 broadband connection. You just have to know about the definitions of it. इन्ना ज़्यादा डीप दे विच जान दी लोड़ नहीं है, बस ऊपर पता होना चाहिए कि हाँ कि आ वाले कनेक्शंस ए वाले होंगे हैं, इन्हां दा की डिसएडवांटेज सीगा तां आपां दूजे कनेक्शंस लैके आए। Now next one is वायरलैस कनैक्शन। वायरलैस यू ऑल नो वाईफाई सब नूं पता है ना। वाईफाई दे विच इहदा फायदा की होया, ना तां आपां नूं केबलां दी लोड़ पई, ना जिहड़े आपां मॉडम यूज़ करदे सीगे, जिहड़े आपां डायल अप कनैक्शन दे विच मॉडम यूज़ करदे सी, जिहड़े आपां ब्रॉडबैंड कनैक्शन दे विच आपां मॉडम यूज़ करदे सी, उन्हां दी आपां नूं लोड़ नहीं पई। सो वायरलैस कनैक्शन सब तो पहला बेनीफिट आपां नूं इह चीज़ होई।
एंड सेकंड वायरलेस है, हम दसिया सी वायरलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, 에ਅਰ, ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਹੋਏਗਾ। 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾਣਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਥਰੂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਸਿਗਨਲਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਅ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, that is wireless fidelity, important one. It is a universal wireless networking technology that utilize करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਵਾਈਫਾਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਆਈ ਹੋਪ you have understood this particular definition of the Wi-Fi. So let's proceed further and do the next definition of the next term, that is worldwide interoperability for microwave access। पहला तो अपने रेडियो वेव ट्रांसफर कर दिया सी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ this is very important, WiMAX, you have to know the full form of it, that is worldwide interoperability for microwave एक्सेस, ठीक है। इसका फायदा ये सीगा जिथे आपां केबल्स नहीं पहुँचा सकते सीगे, ठीक है, जिथे आपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਈਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਈਵਨ ਇਨ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਵਾਇਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ to reach and the ability to overcome the physical limitations of the traditional wired infrastructure. For example, एक कोई hilly area है, ठीक है, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ in today's world everything has been online, ਸਾਰੇ ਕੁਝ online ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਮੈਕਸ। ਸੋ ਵਾਈਮੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗੋ ਇਨ depth of this particular type of the wireless connection. It just requires a special PC card and a built-in antenna. That's it. So these were the types of the wireless connection, and I think we have covered most of the important topics related to the internet. And in the other lecture, next lecture बहुत ही ज़्यादा important है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ important protocols ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, like TCP, SMTP. Next lecture is very important. बिल्कुल भी मिस नहीं करना, try to attend that lecture. and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੇ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਡੂ दैट। and this was all about the lecture, today's lecture। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਮੀ ਆਊਟ।
and any question, do write in the comment section. And this is what this is all about for today. And thank you, and have a very nice day.